Okay, so good morning, all of you. This is the first class of GIPS, Global Investment Performance Standards. Most of the students who are present in the class, whether face to face or live, they have been doing ethics, so they have some idea. But GIPS would be new. And there are many other students for whom this is the first class. Okay? In the ethics section, one portion comes from ethics, the other portion comes from GIPS. GIPS में there is a 100% chance of getting all questions right. Accuracy is 100%. But in the ethics portion, no matter how much we try, 100% accuracy is a little bit of a distant dream because it's too complicated. There could be subjectivity. So therefore, as a tactical advice, we tell the students that when you are preparing for the exam, focus on GIPS because GIPS would be 100% right. But ethics may or may not get fully right. Okay? The audio, the video, everything is fine as per other students. So if one or two students in the live batch are facing a problem like Amol, there is a problem at your end, you will have to see. In case it's not possible, then in that case watch the video of this class later on. Okay. The same thing for Manjot Brar and Amol. There are two students facing an issue. That's a local issue. बाकी सब जन को सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं. Okay. अब बुक में तो गिप्स एक सर्टेन तरीके से लिखा हुआ है, डेफिनेशन ओरिएंटेड. But that is not the way in which you can understand the stuff. So let me try to take my time to explain what is happening. Listen please. India में we all are aware of mutual funds. Mutual funds are pooled funds, P-O-O-L-E-D, pooled, because it's pooling funds from lakhs of investors. And then the fund created is invested in stocks or bonds. All those who invest in the mutual fund, they are given units. They become unit holders. What do they become? Unit holders. So they are not owning the securities, Reliance or Tisco. They are owning the units of the mutual fund. That's called a pooled fund. Another type of pooled fund in India is AIF. Anybody knowing the full form of it? Alternate Investment Fund. It's called Alternate Investment Fund because it generally invests in real estate or startups, or it invests in public equities but in a different strategy, therefore called alternate investment fund. They are also pooled funds. As against mutual fund and pooled fund, there is something called PMS. Anybody knowing the full form of PMS? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम. क्या बोला? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम, PMS. ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम है, नॉट पेंशन मैनेजमेंट स्कीम, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम, दे आर SMA. SMA माने सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट. सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट मीन्स दैट इफ देर इज अ मोतीलाल का PMS एंड उस PMS में आई इन्वेस्ट, मिनिमम 50 लाख का रिक्वायरमेंट है. सपोज आई इन्वेस्ट 150 लाख, 1.5 करोड़ रुपया मैंने इन्वेस्ट किया संजय सराफ ने इनटू द PMS. तो वो जो 1.5 करोड़ रुपया है उसका सेपरेट अकाउंट बनेगा. मेरे ही अकाउंट में द PMS इज ट्रेडिंग, द सिक्योरिटीज आर ओन बाय मी. आई एम नॉट गेटिंग यूनिट्स ऑफ द PMS, आई एम गेटिंग दो सिक्योरिटीज. ओके, इट इज एज पर माई थिंग, माई रिक्वायरमेंट्स एंड प्रैक्टिसेस. मेरे जैसे सपोज और 100 इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया मोतीलाल के PMS में. किसी ने 1.5 करोड़, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 50 लाख. 50 लाख से नीचे अलाउड नहीं है. बट दे आर इंडिविजुअल अकाउंट्स. दे आर नॉट अ पूल्ड फंड. दैट्स कॉल्ड अ PMS. 2 मिनट और स्पेंड कर देते हैं डिफरेंस बिटवीन PMS एंड AIF. AIF में इफ आई इन्वेस्ट 1.5 करोड़, तो इन दैट केस वो 1.5 करोड़ गेट्स पूल्ड विद अदर इन्वेस्टर्स and units are issued to me of that particular fund. Units are issued. I am not owning Reliance, I am not owning Infosys. ठीक है? But PMS में मेरा अकाउंट अलग है, उसमें अलग पोर्टफोलियो है. किसी दूसरे का सेम PMS में अलग अकाउंट, अलग पोर्टफोलियो, तीसरे का अलग है.
बट सर ये जो अलग अलग आप बोल रहे हैं पीएमएस में, इन सब का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तो सेम हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। तो ऑल द 100 people who invested in मोतीलाल का PMS, suppose the investment strategy is large cap growth. What is it? Large cap growth. ठीक है? Many people have understood both the sentences. Large cap growth. Large cap मतलब investing in the large cap stocks. ठीक है तो? And growth मतलब growth oriented companies which are growing at a very fast pace. तो लार्ज कैप ग्रोथ इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, इट्स एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। और उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में मोतीलाल पीएमएस में 100 clients have invested. How many? 100 clients have invested, some 1 crore, some 5 crore, some 2 crore, some 3 crore and all that. ठीक है? There are other PMSs also. HDFC का PMS है, ICICI का PMS है, कोटक का PMS है, ठीक है? फिर और भी प्लेयर्स है, आयरन क्लैड का PMS है वगैरह वगैरह। All these PMSs are competing for business. Is it true? They are competing for business. Competing for business मतलब वो लोग चाहते हैं नए नए क्लाइंट उन लोग के पास आए। जैसे सपोज डिफरेंट ट्यूशन सेंटर्स आर competing for business, जो लोग CFA पढ़ रहे हैं मेरे से क्लास लें, ठीक है? तो वैसे ही द PMSs आर competing for business. म्यूचुअल फंड्स आल्सो competing for business. AIFs आर आल्सो competing for business. केवल म्यूचुअल फंड्स में अपने छोटा अमाउंट लगा सकते हैं, यू कैन इन्वेस्ट 100, 200 वॉट, ठीक है? और PMS AIF बड़े अमाउंट के लिए हो गया, PMS फॉर 50 लाख प्लस, AIF फॉर 1 करोड़ प्लस। इंडिया में 1 करोड़ प्लस या 50 लाख प्लस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द CFA करिकुलम, बिकॉज इंडियन रेगुलेशंस पे क्या थ्रेशोल्ड है वो आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं। बट देन द पॉइंट इज दैट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली वॉट एवर वी आर डूइंग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट होता है, ऐसे भी यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ एन इंटरव्यूअर। Understood? So it's important that you understand global practices but apply it to India. Now all these are investment management firms. What firms? Investment management firms. An investment management firm is going to manage the assets of people. So there is a real estate fund. पैसा कलेक्ट कर रहा है आप लोगों से और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है? देयर इज अ वेंचर कैपिटल फंड, पैसा कलेक्ट कर रहा है आपसे, वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट करेगा स्टार्टअप्स में। देयर इज अ प्राइवेट इक्विटी फंड, आपसे पैसा कलेक्ट कर रहा है और जो प्राइवेट कंपनीज है ना जो लिस्टेड नहीं है उनमें इन्वेस्ट करेगा, ठीक है? तो देयर आर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स व्हिच विल कलेक्ट योर मनी एंड इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? सो वेरियस टाइप्स ऑफ फंड्स, ये सारे के सारे फंड्स आर कंपीटिंग फॉर बिजनेस। ये कंपीटिंग फॉर बिजनेस समझना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कंपीटिंग फॉर बिजनेस। सपोज द फंड इज गोइंग टू चार्ज अ 2/20 स्ट्रक्चर, इसका मतलब वॉट एवर फंड्स द फर्म इज मैनेजिंग इट विल चार्ज 2% मैनेजमेंट फी, 2% मैनेजमेंट फी, एंड वॉट एवर प्रॉफिट इट इज अर्निंग इट विल चार्ज यू 20% इंसेंटिव फी। 20% what fee? Incentive fee. 2% management fee irrespective of performance and 20% incentive fee profit sharing, ठीक है? तो so the greater the pool, the greater the income that the fund is going to earn. So they are deploying so many people, मतलब एक एक फंड हाउसेज में इतने सारे सेल्स एजेंट्स हैं जो लोग जाके HNI को, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, अल्ट्रा HNI को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और जो म्यूचुअल फंड वगैरह है वो तो ओपनली एडवर्टाइज कर रहे हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में वगैरह वगैरह। और ये जो PMS AIF है ये ओपनली एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, बट ये अपने एजेंट्स के थ्रू जो है वर्ड ऑफ माउथ से एडवर्टाइज कर रहे हैं और ये पूरा बिजनेस चल रहा है। बिजनेस समझे बिना इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एंटर इनटू गिप्स। एंड आई विल नॉट वॉच लुक एट माई वॉच वाइल सीइंग कितना टाइम मैंने लगा दिया, गिप्स स्टार्ट भी नहीं हुआ, बिकॉज वी हैव टू टेक टाइम, ठीक है ना? अब क्या हो रहा है कि ये लोग जो क्लाइंट्स को अपीज करने के लिए कि मेरे से ट्यूशन लो, या क्लाइंट्स को अपीज करने के लिए मेरे को फंड्स दो, मेरे को चुनो प्लीज एज द इन्वेस्टमेंट मैनेजर, दे आर गोइंग टू हाईलाइट देयर पास्ट परफॉर्मेंस। मैं अपना पास्ट रिजल्ट्स दिखाऊंगा कि CFA मैंने जिनको पढ़ाया है ना वो लोग क्या फैंटास्टिक पास हुए हैं और वो लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। वैसे ही वो जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स है दे विल शो पास्ट रिजल्ट्स, ठीक है? वो पास्ट रिजल्ट्स को देख के यू विल बी इन्फ्लुएंस्ड टू पुट योर मनी इनटू दैट इन्वेस्टमेंट फर्म। हाँ यार इसके पास पैसा पुट करना चाहिए, देखिए क्या फैंटास्टिक रिटर्न दिए, ठीक है? तो नाउ ऑब्वियस है कि given the competition, investment management firms are going to be fair or unfair in terms of presenting their past performance. Unfair. Obvious है वो लोग unfair होंगे, ठीक है? They are going to be unfair. They are not going to represent fairly. They will be unfair and they will not provide full presentation.
ओके वो लोग पार्शियल प्रेजेंटेशन देगा। सो 3 तरह का एब्यूजिव प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री में चल रहा है, या फिर इंस्टीट्यूट ने लिखा है चल रहा था, आई एम सेइंग चल रहा है। 3 तरह का एब्यूजिव प्रैक्टिसेस। द 3 एब्यूजिव प्रैक्टिसेस आर, नंबर 1 रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बायस। व्हाट बायस? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, यानी जो कुछ एक स्टूडेंट्स मेरे बहुत बढ़िया से पास किए हैं, CFA में नहीं होता बट CA में, जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है, रैंक 2 लाया है, ठीक है, या जिसका जॉब JP मॉर्गन में वो 10-20 साल में कहाँ चला गया है, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। आई एम हाईलाइटिंग अ फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड विथ मी, आई एम नॉट हाईलाइटिंग ऑल ऑफ देम। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो है ना, से मोतीलाल ओसवाल, मेरा जो पर्टिकुलर 1.5 करोड़ लिया था, 1.5 करोड़ जिस समय लिया था, उसमें बहुत फैंटास्टिक परफॉर्मेंस हो गया, बिकॉज लकीली जिस समय मैंने पैसा लगाया उसके बाद मार्केट जोर से बढ़ गया। सो लास्ट 6 महीने में मेरा परफॉर्मेंस इज सुपरलेटिव, तो वो सबको दिखा रहा है। देखो इस अकाउंट का हम लोग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, इट इज शोइंग ग्रेट परफॉर्मेंस। बट और भी तो अकाउंट्स है विद इन द सेम स्ट्रैटेजी, लार्ज कैप ग्रोथ, और उनका नहीं दिखा रहे, वो एक फ्यू अकाउंट्स का परफॉर्मेंस दिखा रहे, फ्यू स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस दिखा रहे। दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बायस, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बायस माने शोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ फ्यू टॉप परफॉर्मिंग अकाउंट्स, अ फ्यू टॉप परफॉर्मिंग अकाउंट्स। इज इट अ फुल प्रेजेंटेशन? नो, इट इज इनकम्प्लीट, ठीक है, इट इज नॉट फेयर। दूसरा अब्यूजिव प्रैक्टिस का बात कर रहे हैं। द सेकेंड अब्यूजिव प्रैक्टिस इज दैट, यू कैन कम टू द फर्स्ट बेंच। द सेकेंड अब्यूजिव प्रैक्टिस इज दैट दे आर showing only surviving accounts, not terminated accounts. They are showing only surviving accounts, not terminated accounts. यानी जो स्टूडेंट्स ट्यूशन ज्वाइन किए और ज्वाइन करके अल्टीमेटली या तो पहले ही परेशान होकर छोड़ दिए या फिर फेल हो गए और छोड़ दिए, अपने उनका नहीं दिखा रहे, अपने दिखा रहे जो स्टूडेंट्स रह गए अपने पास, देखो वो लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए। ओनली द सर्वाइवर्स, वी आर नॉट रिपोर्टिंग द टर्मिनेटिंग अकाउंट्स। वैसे ही मोतीलाल ओसवाल के साथ बहुत जन ने परेशान होकर अकाउंट बंद कर दिया होगा कि हम लोग का पैसा वापस दो। दे आर नॉट रिपोर्टिंग देयर परफॉर्मेंस, दे आर रिपोर्टिंग ओनली दोज क्लाइंट्स का परफॉर्मेंस हु हैव स्टेड विद देम। तो इसका मतलब तो वो लोग तो वही क्लाइंट्स होंगे ना जिनका पैसा बढ़िया से मैनेज हुआ होगा, और जिनका पैसा डुबा दिया उनका रिपोर्ट नहीं कर रहे। दैट्स कॉल्ड सर्वाइवरशिप बायस। व्हाट बायस? सर्वाइवरशिप बायस। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सर्वाइवर पहला था रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। And the third abusive practice is varying time period, VARYING, varying time period। varying time period मतलब अलग अलग पीरियड का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, सिंस इंसेप्शन परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे। If I have been teaching for the last say a particular program, I started 7 years ago, एक particular program मैं स्टार्ट किया, ट्यूशन पढ़ाना 7 साल पहले। मेरे को पूरा परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए 7 साल का, बट इंस्टेड मैं केवल 1 साल का परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ जहाँ पे मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया हुआ था। तो आई एम शोइंग 1 ईयर का परफॉर्मेंस जहाँ पे रिजल्ट्स वे सुपर्ब। ओके, तो दैट इज ऑब्वियसली नॉट डन ना, दैट्स चेरी पिकिंग। व्हाट इज इट? चेरी पिकिंग। कि आप पिक करके वही चीज़ दिखा रहे हो जो बढ़िया चेरीज है, जैसे फ्रूट सेलर विल पुट द बेटर फ्रूट्स ऑन द टॉप, ठीक है, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। वेरिंग टाइम पीरियड, नॉट शोइंग द एंटायर सिंस इंसेप्शन, शोइंग फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। सो ऐसे इन्वायरमेंट में क्या होगा कि investors say you are going to choose a wrong manager because you are going to be fooled by his unfair presentation and you will choose the wrong manager. When you will choose the wrong manager, ultimately you will give him money. People like you will give him money. He will not be able to manage it properly. Okay, your money will be lost. When your money will be lost, your trust will be lost. You will then get to know ये क्या किया था. Then you will advise others also, कभी इसके पास पैसा मत लगाना। जनरली ये बात फैला सबके पास कि ये लोग सब चोर हैं, ये लोग जो भी इस तरह से मैनेज कर रहे हैं, दे आर डूइंग दिस वे। द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल इज लॉस्ट इन द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कम्युनिटी। पीपल स्टार्ट पुटिंग देयर ओन मनी इन द स्टॉक मार्केट एंड पीपल डोंट हैव द ब्रेन्स एंड इंटेलिजेंस टू डू दैट, सो दे आर लूजिंग मनी देमसेल्व्स आल्सो। अल्टीमेटली savings rate in the economy comes down, capital formation comes down, economic growth comes down. People like you and I who are going to study finance are not going to get a job in the investment management world. When you become a CFA and all that and you're wanting to become an investment management consultant or whatever, you're not able to get the job. Why? Because अब लोग ही पैसा देना बंद कर दिए। In fact, that is the larger purpose of ethics, कि इस इंडस्ट्री में क्यों ethics होना चाहिए। Are you understanding? 1999 में CFA Institute became the leader. It is the only institute that started GIPS,
बोला पूरे ग्लोब के लिए, वर्ल्ड के लिए हम लोग ये गिब्स का स्टैंडर्ड बना रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेकेंड और थर्ड वर्ड है इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। क्या वर्ड है? इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। जो डिफरेंट कंपनीज है, रिलायंस, टिस्को, टीसीएस, ये लोग जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, बिकॉज आर दे इन द इन्वेस्टमेंट बिजनेस? नो। टिस्को is in the iron and steel business, ACC is in the cement business. They are also presenting performance to shareholders and prospective shareholders, the balance sheet, the PL account, the cash flow statement. And अपने जो है, जो मोतीलाल ओसवाल है, जो HDFC AMC है, जो आयरन क्लैड है, जो मार्सिलियस है, वो लोग भी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस प्रेजेंट करेंगे ना वर्ल्ड को, तो सब अपने अपने तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। And you are not able to compare. You are taking a report of Motilal, you are taking a report of Marsilius, you are taking a report of HDFC. तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है यार, ये अलग लिख रहा है, ये अलग लिख रहा है, ये ऐसे बना रहा है, ये वैसे बना रहा है। Comparability is not there, faith is not there, trust is not there, abusive practices are there. तो 1999 में CFA Institute brought out Global Investment Performance Standards, global, not local, not US. ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सा उसके पहले 1999 के पहले क्या यूएस जैसे एडवांस्ड कैपिटल मार्केट में परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड नहीं था? था, बट अप्लाइड टू यूएस, अप्लाइड टू यूएस। यूके में नहीं था? था, अप्लाइड टू यूके। ठीक है, तो इंडिविजुअल कंट्रीज में था बट अप्लाइड लोकली। प्रॉब्लम ये है, देयर आर ग्लोबल इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट ग्लोबली, सो लोकल स्टैंडर्ड्स वोंट वर्क. There has to be global standards, and hence CFA Institute created the Global Investment Performance Standard, GIPS. Sir, क्या किसी CFA स्टूडेंट का जो CFA कंप्लीट करेगा उसका केवल GIPS में करियर बन सकता है? आंसर इज यस, जोर का यस। केवल GIPS में, नथिंग एल्स। केवल GIPS में आपका करियर बन सकता है। वह जो फर्म्स लोग GIPS को फॉलो करना चाहते हैं उनको हेल्प करना, कैसे फॉलो करना है GIPS को, उनके कंप्लायंस में जो अपने डिस्कस करेंगे वो सारे में हेल्प करना, दैट इटसेल्फ इज अ करियर। ओके, फर्म्स विल हायर यू बिकॉज यू नो GIPS, so that itself is a particular career altogether. ठीक है, this is GIPS. Now before speaking further, एक रशियन डायलॉग शेयर करना चाहूँगा. The dialogue is that if you ignore history, the past, you may make a mistake in terms of future decision making. But if you rely only on the past, you will definitely make a mistake. अगर आप हिस्ट्री को इग्नोर करोगे, you may make a mistake. बट अगर आप हिस्ट्री को ही केवल कंसिडर करोगे, यू विल डेफिनेटली मेक अ मिस्टेक. इसका मतलब गिप्स इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ ड्यू डिलिजेंस. जैसे सपोज 4 फर्म्स है जो गिप्स कंप्लाइंट है, गिप्स को फॉलो करते हैं, और आपको को पता है गिप्स बहुत ही बढ़िया होने वाला है, वो बढ़िया से परफॉर्मेंस समझाने वाला है, तो क्या अपने आंख मूंद के उनके फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं. इसका मतलब वो लोग जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो फुल अफेयर है, बट क्या पता वो प्रेजेंटेशन माने वैसा परफॉर्मेंस फ्यूचर में नहीं होगा. समबडी स्कोर्ड वेरी वेल इन द इंडिया यूके का जो टेस्ट सीरीज था, बट दैट प्लेयर में नॉट स्कोर वेल इन द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज. इट्स पॉसिबल ना. तो इन दैट केस decision making, due diligence and all that will not be substituted by GIPS. It's something that has to be done. It is not a substitute. Also, what's your common sense? क्या GIPS जो है CFA इंस्टीट्यूट बोलेगा पाकिस्तान को कि every firm has to follow GIPS? ये पॉसिबल है? या इंडिया को या यूके को? नहीं पॉसिबल है. तो GIPS is going to be compulsory or voluntary? Voluntary. These are voluntary standards. These are not legal compulsory standards. Mandatory नहीं है, voluntary है. तो सर अगर वॉलंटरी है तो फर्म्स लोग फॉलो ही क्यों करेंगे ये स्टैंडर्ड्स? क्यों फालतू में माथापच्ची करेंगे? इन ऑर्डर टू गेट ग्लोबल बिजनेस, इन ऑर्डर टू गेट ग्लोबल बिजनेस. यहाँ पे आप लोग को ठीक से समझना जरूरी है. एंड क्या होता है, लोगों को तब समझ में आता है जब लोग अपने ऊपर लेके सोचते हैं. लास्ट क्लास जब मैंने कंप्लीट किया इक्विटी का जो सेकेंड क्लास था, तो इन दैट केस अ फ्यू स्टूडेंट्स हैड कम टू मीट मी. उनमें से एक बंदा जो है ही वॉज एन इंजीनियर, ओके, एंड this guy is doing work of data analytics, around early 30s में था. and he told me कि सर हम डेटा एनालिटिक्स का काम 12 साल 15 साल किए हैं, अब मेरे को फंड मैनेजमेंट में जाना है. मेरा पर्पस है कि मैं 3-4 साल में अपना PMS या AIF खोलूँ. ठीक है, तो मैं मार्केट्स पे इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा आइडिया है. दैट्स व्हाट ही सेड. तो इन दैट केस ही सेड, पर मेरे को लग रहा है ना कि सर अगर मैं PMS या AIF चालू करूँगा ना 4-5 साल बाद,
तो मेरा कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं होगा, बिकॉज कोई क्वालिफिकेशन क्रेडिबिलिटी नहीं है, ठीक है, और मेरे को इतना आइडिया वैसे नहीं है ग्लोबल मार्केट्स का, तो मेरे को लग रहा है मैं CFA कर लूँ. यू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव. तो द पर्सपेक्टिव इज दैट अगर एक मिडिल ईस्ट में, अब मैं स्टोरी बना रहा हूँ, मिडिल ईस्ट में देयर इज अ सॉवरेन वेल्थ फंड, से अबू धाबी वेल्थ फंड, ओके, बिकॉज मिडिल ईस्ट इज रियली वरीड अबाउट ऑयल के बाद क्या होगा. ओके, द वर्ल्ड इज गोइंग टूवर्ड्स नॉन फॉसिल फ्यूल्स ना, तो इन दैट केस मिडिल ईस्ट का तो पूरा का पूरा वो लोग जीते ऑयल के कारण, तो ऑयल के बाद क्या होगा. सो दे आर सेटिंग अप सॉवरेन वेल्थ फंड. देयर इज अ मिडिल ईस्ट का सॉवरेन वेल्थ फंड, $500 बिलियन का AUM, $500 बिलियन का, व्हाट इज AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, $500 बिलियन. उसमें से $300 मिलियन, उसमें से $300 मिलियन it decides to allocate to emerging market equity mandate. मैंने वर्ड यूज किया emerging market equity mandate. एक तो होता है डेवलप्ड मार्केट, द G7, US, UK, जापान एंड ऑल दैट, और एक होता है इमर्जिंग मार्केट, द ब्रिक्स इकोनॉमीज, ठीक है. तो इमर्जिंग मार्केट इक्विटी में बहुत ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लगता है कि बहुत स्कोप है, इंडिया से, चाइना से काफ़ी इक्विटी मार्केट में 10, 12, 20%, 30% रिटर्न अर्न किया जा सकता है, एंड देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज. तो इमर्जिंग मार्केट इक्विटी मैंडेट, ठीक है, और उसके लिए फ्लोट किया RFP इज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFP. फिर से मिडिल ईस्ट का एक सॉवरेन वेल्थ फंड है, उसका टोटल कॉर्पस $500 बिलियन है. उसने उसमें से $300 मिलियन डिसाइड किया एक नया मैंडेट निकालेंगे, विच इज इमर्जिंग मार्केट इक्विटी मैंडेट. तो ज्योग्राफी कौन सा, इमर्जिंग मार्केट, एसेट क्लास कौन सा, इक्विटी, उसके लिए एक मैंडेट निकाला एंड उसके लिए RFP फ्लोट किया, RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल. नाउ दिस इज इनवाइटिंग बिड्स, टेंडर्स, यानी कि बोल रहा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स है जो क्लेम करते हैं कि हम लोग चैंपियन है इमर्जिंग मार्केट इक्विटी का फंड्स मैनेज करने के लिए, सपोज आज से 10 साल बाद की बात बोल रहा हूँ, तुम एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म खोल लिए, यू हैव ओपनड एन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म बाय द नेम ऑफ शक्ति कैपिटल, बाय द नेम ऑफ व्हाट, शक्ति कैपिटल. कोई है क्या स्टूडेंट शक्ति नाम से क्लास में? नहीं है, ओके, कोइंसिडेंटली आजकल शक्ति नाम रखते नहीं है लोग, ठीक है. तो शक्ति कैपिटल इज द फर्म दैट यू हैव ओपनड आफ्टर 10 years बिकमिंग अ CFA एंड ऑल दैट. एंड ये जो शक्ति कैपिटल ये बिलीव करता है कि एक्चुअली इट हैज द शक्ति टू प्रोड्यूस फिनोमिनल रिटर्न इन द इमर्जिंग मार्केट इक्विटी स्पेस. तो तुम्हारा मन करेगा काश मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, जैसे बिड नहीं करते अपने टेंडर्स के लिए, तो वैसे ही तुम बिड करेगा फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सॉवरेन वेल्थ फंड के पास RFP में पार्टिसिपेट करना चाहेगा. द पॉइंट इज दैट जनरली उसके अंदर क्राइटेरिया रहेगा, द पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म हु इज अप्लाइंग हैज टू बी गिब्स कंप्लाइंट, हैज टू बी गिब्स कंप्लाइंट. यानी अगर तुम गिब्स कंप्लाइंट नहीं है तुम बिड ही नहीं भर सकता है. You can't submit the proposal, you will not get a seat in that room, you don't qualify for the Olympics race. Are you understanding? So why would investment management firms want that they follow GIPS? Because if they want to compete globally, अगर वो लोग compete करना चाहते हैं globally, in that case they have to be GIPS compliant. They will lose out all the RFPs. It's a global ticket for applying for RFPs. ठीक है, तो in that case that's the benefit. दूसरा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है. अगर आपको पता चलता है ना, ओ ये फर्म गिब्स कंप्लायंट है, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इमीडिएटली यू आर एबल टू रिलाई मोर. ठीक है, जैसे आई डोंट नो फूड एंड सेफ्टी का FSI या क्या होता है ना, जिसका लेबल रहता है FSAI का लेबल है, या कोई और चीज़ का लेबल होता है ना कोई चीज़ में, देख यार इस पर इसका स्टैंप है, तो अपने को एक ISI, तो अपने को क्या लगता है, हाँ यार ये तो सर्टिफाइड है, नहीं लगता ऐसे. तो वैसे ही गिब्स एक तरह से वो स्टैंप ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट हो गया. तो इसलिए सारे फर्म्स चाहेंगे ना, काश क्लाइंट्स लोग हम लोग को स्केप्टिज्म से नहीं देखे, हम लोग को स्ट्रेट अवे बिलीव करें, तो वो बिलीव फेथ आता है क्लाइंट्स लोग का. ठीक है, उसके अलावा गिब्स को फॉलो करने में तो बहुत सारा प्रोसेसेस होने वाला है, तो वो प्रोसेसेस की वजह से इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द फर्म्स विल इंप्रूव. व्हाट विल इंप्रूव?
इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द फर्म्स विल इंप्रूव। तुम समझ रहे हो? तुमको अगर अपने कोई कंपटीशन करते हैं, ठीक है, और उस कंपटीशन में तुम अप्लाई कर रहे हो, उसकी वजह से यू नो दैट अगर तुमको एक कंपनी के बारे में सॉलिड नॉलेज है, सर हम क्या जानते हैं उस कंपनी के बारे में, तो आप जो अंदर जानते हैं ना उससे मेरे को मतलब ये बाहर निकालिए। यू हैव टू प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ पीपीटी, दिस दैट, एक्सेल शीट वगैरह करना पड़ेगा ना। ये सब करने के प्रेशर में क्या होगा, तुम खुद ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, इजंट इट? यू विल बिकम मोर एफिशिएंट एज अ रिजल्ट ऑफ इट, योर इंटरनल कंट्रोल्स विल इंप्रूव। ठीक है, तो ये सब फायदा फर्म्स को होगा। इन्वेस्टर्स को तो फायदा है ही, इन्वेस्टर्स विल बी एबल टू कंपेयर द रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स और विल नॉट बी एबल टू कंपेयर, विल बी एबल टू कंपेयर बिकॉज ऑल द रिपोर्ट्स आर इन अ स्टैंडर्डाइज्ड मैनर। नाउ यू आर एबल टू कंपेयर। ओके, जैसे होता है ना, सब फर्म्स का पीएल अकाउंट चालू होता है रेवेन्यू से, फिर आता है सीओजीएस, तो आपको पता है कि यार इस तरह से होता है, अब मैं तो कंपेयर कर पा रहा हूँ। दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। व्हाट इज कॉल्ड? स्टैंडर्डाइजेशन। स्कूल्स में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो कि एक क्लास इतने देर का होगा, इतने देर का होगा, ऑल दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। तो गिब्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर प्रैक्टिशनर लेवल, जो लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिशनर लेवल सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री वाइड अप्रोच फॉर इन्वेस्टमेंट फर्म्स टू फॉलो to calculate and present historical investment performance to investors and prospective clients. Okay, the language is not important. Your ability or my ability to speak out the language is irrelevant in the CF exam. कि साहब हम याद नहीं कर पा रहे, नहीं याद करना, आप हिंदी में बोल पा रहे, बढ़िया। ठीक है, तो गिब्स उसके लिए है। मैं ये ट्राई कर रहा था कि गिब्स का बैकग्राउंड बता दूं कि गिब्स क्यों है। गिब्स अपने लेवल 1 में है और लेवल 3 में है। लेवल 1 में जाहिर है इंट्रोडक्शन है, लेवल 3 में एक्सप्लोरेशन। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, लेवल 3 में सबसे ज़्यादा लिंक लेवल 1 से है। दोज हु आर स्ट्रगलिंग इन लेवल 3, आपके जान पहचान में भी, दे आर स्ट्रगलिंग बिकॉज लेवल 1 वाज नॉट स्टेबल। ओके, उसके कारण लेवल 3 में स्ट्रगल करते रहते। ठीक है, गिब्स में टोटल 8 सेक्शन है, 8 सेक्शंस आर देयर। ओके, सेक्शन 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्लायंस, सेक्शन 2 इनपुट डेटा एंड कैलकुलेशन, ऐसे करके 8 सेक्शंस। अपने वहाँ डिटेल में लेवल 1 में नहीं है, गिब्स का इंट्रोडक्शन है कि स्टूडेंट्स को पता चल जाए। ठीक है, गिब्स हैज 3 चैप्टर्स। यहाँ नहीं, आई एम ट्राइंग टू से ओरिजिनल गिब्स का राइट अप हैज 3 चैप्टर्स। वन इज गिब्स फॉर फर्म्स, गिब्स फॉर फर्म्स। सेकेंड इज गिब्स फॉर एसेट ओनर्स, समझाऊंगा। थर्ड इज गिफ्ट्स फॉर वेरिफिकेशन, गिफ्ट्स फॉर वेरिफिकेशन। एक है फॉर फर्म्स, एक है फॉर एसेट ओनर्स, एक है फॉर वेरीफायर्स। एसेट ओनर्स का मतलब ये हो गया, ईपीएफओ का नाम सुना है? ईपीएफओ इंडिया में नाम सुना है आपने? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इज द ईपीएफओ। ठीक है, इट मैनेजेस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यू कैन चेक ऑन योर दिस थिंग दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एसेट्स मैनेज्ड बाय ईपीएफओ इन इंडिया। चेक करो एक बार, लेट्स गेट एन आइडिया। ईपीएफओ कितना फंड्स मैनेज कर रहा है इंडिया में? EPFO, what is the amount of funds managed by Employee Provident Fund? 25 lakh crore. Just understand the amount. It is 25 lakh crore. 25 लाख करोड़ बोल रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो सोच लो। ठीक है, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ EPFO. There is CalPERS in US, CalPERS, I think California Pension something. ठीक है, CalPERS in US, उसका चेक करो एक बार, बिकॉज कुछ कॉमन नेम जानने चाहिए अपनी इस इंडस्ट्री में है तो। वी कांट बी स्पेल बाउंड। आप लोग कॉलेज में हैं, इन द फाइनल ईयर ऑफ योर कॉलेज यू विल फाइंड दैट देयर बी फर्म्स कमिंग फॉर द पर्पस ऑफ प्लेसमेंट, और लोग चाहते हैं काश वहीं पे प्लेसमेंट हो जाए। इट कैन नॉट हैपन बाय जस्ट पासिंग CFA L1 L2, बाय बीइंग स्पीकेबल अबाउट स्टफ ओके दैट आर वेरी वेरी कॉमन। CalPERS कितना फंड मैनेज कर रहा है? कितना? 500? ठीक है, 500 हो गया तो $558 बिलियन, $556 बिलियन मैनेज कर रहा है CalPERS। ठीक है, तो ये जो है ना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या फिर CalPERS इन US, जो इसका इक्विवेलेंट हो गया,
एक कोल माइन फंड भी इंडिया में है, कोल उसके लिए, ठीक है। नाउ दीज फंड्स आर नॉट मार्केटिंग, प्लीज मेरे को बिजनेस दो, दे आर नॉट मार्केटिंग। जैसे मोतीलाल ओसवाल मार्केट कर रहे हैं ना, HDFC मार्केट कर रहा है, ICICI मार्केट कर रहा है, स्टैंडिंग आउट टू विन योर बिजनेस। दे आर नॉट मार्केटिंग टू विन योर बिजनेस, but they are managing huge funds and they are reporting to an oversight body, reporting to an oversight body। मेरे ख्याल से EPFO is reporting to the Ministry of Labor। check EPFO का रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है, चेक करो। EPFO का रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है, किसको वो रिपोर्ट करते हैं? EPFO रिपोर्ट्स टू होम, बिकॉज एम्प्लॉई कह रहे हैं इसलिए वो फीलिंग आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देवांशी आस्किंग सर कैल्पर्स का नाम क्या है? आई थिंक CALPERS है, बट स्पेलिंग और ये सब के बारे में डोंट रिलाई ऑन मी एवर, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग द हिंट। तो ये जो मैं नाम बोला, EPFO इंडिया में वेरी पॉपुलर, उसके अलावा कैल्पर्स हो गया, ठीक है। ये लोग जो दे है ना, दे आर नॉट कंपीटिंग फॉर बिजनेस कि हम लोग को पैसा दो ना, ये नहीं हो रहे। By regulation, employees have to contribute to EPFO, and EPFO have to report to a particular oversight body, regulator। इस केस पे regulator था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, उसको रिपोर्ट करते हैं। 2020 के पहले GIPS GIPS was only applicable for investment management firms। Which firms? Investment management firms, यानी the likes of BlackRock, Fidelity, अगर ग्लोबल बात करूं द लाइक्स ऑफ HDFC, AMC, इनाम एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इनके लिए एप्लीकेबल था। जो लोग कंपीट कर रहे हैं फॉर बिजनेस, मेरे को पैसा दो मैनेज करने के लिए, उनके लिए था, इट वाज फॉर देम। 2020 के बाद एक्सपैंड कर दिया गया एंड वी हैव अ शॉर्टर वर्जन ऑफ गिफ्ट्स एप्लीकेबल फॉर एसेट ओनर्स। क्या बोला? एसेट ओनर्स। एसेट ओनर्स आर प्रोविडेंट फंड्स, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, etc., who are not competing for business but who are reporting to an oversight body and who are actually managing assets, So we have number 1 GIPS for investment firms, number 2 we have GIPS for asset owners like provident funds who are not competing for business but who are reporting to an oversight body, ठीक है। उनके लिए भी GIPS एक शॉर्टर वर्जन ऑफ GIPS है। एंड नंबर 3 वी हैव GIPS फॉर वेरीफायर्स। वेरीफायर्स माने, लेट्स चेंज द ट्रैक, कंपनीज लोग जो साल के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं, कंपनीज लोग मतलब ACC, गुजरात अंबुजा एंड ऑल दैट, वो रिपोर्ट रिलायबल है या रिलायबल नहीं है, उसके लिए ऑडिट होता है ना, ओके। द CAs इन इंडिया हु ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द CPAs इन US who audit financial statements in US, the ACCAs in UK who audit UK का financial statements, you are aware of the same auditors who audit, who will not give a guarantee, कोई mistake नहीं है, मैंने audit कर दी है, वैसा नहीं है, but to give a reasonable assurance that all the accounting standards, accounts का standards have been observed and true and fair view है। वैसे ही GIPS का कोई फर्म बोल रहा है हम लोग GIPS compliant है, हमने GIPS comply किया है, कोई फर्म क्लेम कर रहा है we are GIPS compliant, तो उसका वेरिफिकेशन कि उसने किया है क्या, उसका भी तो ऑडिट हो तो बढ़िया होगा ना, उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। सिंस GIPS खुद में मैंडेटरी है या वॉलंटरी है? वॉलंटरी, तो जाहिर उसका वेरिफिकेशन क्या होने वाला है? वॉलंटरी। तो सर फिर वेरिफिकेशन वॉलंटरी है तो क्यों फालतू में खर्चा करके वेरिफिकेशन करवाएंगे? इट गिव्स अ फर्दर स्टैंप ऑफ अथॉरिटी। अगर GIPS कंप्लायंस वेरीफाइड है तो और एक फर्दर आता है, जाहिर है वेरिफिकेशन विल बी डन बाय द सेम फर्म, तो अपना खुद का चेक करेगा, या विल बी डन बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। वंस अगेन दैट बिकम्स अ प्रोफेशन फॉर यू कि सर आई हैव बिकम इन फ्यूचर अ GIPS वेरिफिकेशन फर्म, तो आपके लिए भी स्टैंडर्ड्स है, अंडरस्टूड। तो GIPS का टोटल में 3 तरह का स्टैंडर्ड्स है। नंबर 1 GIPS फॉर इन्वेस्टमेंट फर्म्स, नंबर 2 GIPS फॉर एसेट ओनर्स, नंबर 3 GIPS फॉर वेरीफायर्स। GIPS फॉर इन्वेस्टमेंट फर्म्स सबसे मेन फोकस अपना उसी पे, जनरली टॉक उसी का चल रहा है। दूसरा GIPS फॉर एसेट ओनर्स, तीसरा GIPS फॉर वेरीफायर्स, ठीक है। तो वेरीफायर्स के बारे में नहीं, पर वेरिफिकेशन के बारे में लास्ट LOS है, टोटल 5 LOS है इस चैप्टर में, 5 लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट। 5th लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट इज अबाउट वेरिफिकेशन, जिसका मैंने बोल ही दिया अभी। मैंने बोला वेरिफिकेशन इज कंपल्सरी और वॉलंटरी?
वॉलंटरी। वेरिफिकेशन हैज टू बी डन बाय द फर्म इटसेल्फ और बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, ठीक है। और जब वेरिफिकेशन कर लिया तो फर्म एक स्टेटमेंट पास कर सकता है कि सच एंड सच फर्म विच इज गिब्स कंप्लाइंट हैज बीन वेरीफाइड बाय सच एंड सच पार्टी फॉर सच एंड सच पीरियड। मैंने एक स्टेटमेंट, एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है जो लिख सकता है कि देखो हमारा फर्म इसके द्वारा वेरीफाइड हुआ है इस पीरियड के लिए, ठीक है। तो गिब्स वेरिफिकेशन स्टेटमेंट। बिलीव मी, लास्ट एलओएस इज ओवर। मैंने इतना इजी पार्ट ना, एक बार आदमी गिब्स का ढांचा स्ट्रक्चर समझ जाए जो मैं कोशिश कर रहा था, तो इन दैट केस यू विल फाइंड दैट बाकी के एलओएस तो ऐसे ही हो जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होता है, जहाँ विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग और व्हाटएवर, जैसे किताब में दिया रहता है, देन इन दैट केस इट बिकम्स अ रियली हेल ऑफ एन एक्सरसाइज की माथा खराब हो गया, क्या क्या लैंग्वेज दिया हुआ है ऑल दैट, जो कि है सारा स्टफ ईजी, ठीक है। तो एसेट ओनर्स वाला पार्ट जो है ना, उस पर लेट मी मेक यू अवेयर, ऐसे भी एसेट ओनर्स हो सकते हैं जो दो पैरेलल काम कर रहे हैं। नंबर वन, दे आर कंपीटिंग फॉर बिजनेस, नंबर टू, दे आर रिपोर्टिंग टू एन अथॉरिटी। एलआईसी जो है वो अलग से इट्स कंपीटिंग फॉर बिजनेस ऑल्सो, वो इन्वेस्टमेंट यूलिप प्रोडक्ट के लिए पैसा मांगता है। एलआईसी इज कंपीटिंग फॉर बिजनेस, बाय दैट अकाउंट एलआईसी इज फॉलोइंग इनटू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म, इट हैज टू फॉलो दो स्टैंडर्ड्स। बट एलआईसी में जो लोग इंश्योरेंस बाई कर रखे ना, जैसे मैं सपोज लाइफ इंश्योरेंस बाई कर रखा हूं, वो जो पैसा है तुमको तो पता है, बर्कशायर हैथवे इज एट द एंड ऑफ द डे, वॉरेन बफेट का बर्कशायर हैथवे इज एन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो बर्कशायर हैथवे इज एन इंश्योरेंस कंपनी। तो एलआईसी जो क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस का पैसा जो अलग से लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज फॉलोइंग इनटू एसेट ओनर्स, दैट्स नॉट फॉलोइंग इनटू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म। जहां कंपीट कर रहे हैं आप बिजनेस के लिए, मेरे को पैसा दो मैनेज करने के लिए, दैट इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म। जहां मैनेज कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं अथॉरिटी को, रिपोर्ट करेगा अथॉरिटी को, दैट इज एसेट ओनर। सर आईटीसी जो है ना, आईटीसी कैलकाटा में जो आईटीसी का ऑफिस है, वो लोग का भी तो इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आईटीसी कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट का एसेट साइड में शुरू में फिक्स्ड एसेट होगा, प्लांट मशीनरी ये सब, उसके तुरंत बाद क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स सारी फर्म का होता है। तो क्या वो लोग भी गिब्स के अंदर कवर्ड है? एकदम भी नहीं। बिकॉज आर दे रिपोर्टिंग टू एनी अथॉरिटी? नो। आर दे कंपीटिंग फॉर बिजनेस? क्या आईटीसी बोल रहा है हमको पैसा दो, हम शेयर मार्केट में लगाएंगे? नो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वैसे 20 साल पहले देयर वाज अ एंटिटी कॉल्ड आईटीसी क्लासिक फाइनेंस। आईटीसी का एक विंग था आईटीसी, बिकॉज आईटीसी तो हर चीज में चौका मारा हुआ है ना, चाहे वो सिगरेट हो जाए, चाहे होटल हो जाए, चाहे पेपर हो जाए, तो वो चौका ऐसे चीज़ों में तुम्हारा जो टर्मिनेट हो गया। तो आईटीसी क्लासिक फाइनेंस ये काम करता था, फिर बंद हो गया डुबा के पैसा, ठीक है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये मत सोच लेना कि हर एक फर्म सर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो भी तो गिब्स कंप्लाइंट कर सकता है। नो, इट इज नॉट फॉर, इट इज फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स और फॉर एसेट ओनर्स हु आर रिपोर्टिंग टू एन अथॉरिटी, ठीक है। तो उनके लिए गिब्स एप्लीकेबल है, फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स एंड फॉर एसेट ओनर्स। अगर कोई एडवाइजर है, आप लोग कई जन मेरे से कई बार पूछते हो कि सर हम लोग NISM का एग्जाम दे सकते हैं क्या? हैव यू हर्ड अबाउट NISM एग्जाम्स? मोस्ट पीपल हैव हर्ड, बिकॉज उसको देना इट्स मोस्टली कुछ भी नहीं है देने में, 1 सप्ताह 2 सप्ते का प्रेपरेशन, अगर नहीं भी है कोई बैकग्राउंड, और उसके बाद जाके 1,500-2,000 रुपये लगता होगा। तो द एंट्री बैरियर्स आर नॉट देयर एट ऑल एंड यू गेट अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंडियाज रेगुलेटर NISM। देवांश बोल रहा है आई डोंट नो, देवांश आप सर्च कर लेना, ओके। तो सेबी ने NISM का सीरीज निकाल रखा है। तो NISM में एक होता है RA का एग्जाम, किसका? RA रिसर्च एनालिस्ट। एक होता है IA का एग्जाम, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, और एक होता है फंड मैनेजर का एग्जाम। RA, IA और फंड मैनेजर, तीनों में डिफरेंस है ना। RA जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू योर फ्यूचर। RA जो बन रहा है रिसर्च एनालिस्ट, वो ये बोलना चाह रहा है कि मेरे में ब्रेन्स है, आई कैन रियली रिसर्च अबाउट अ कंपनी एंड आई कैन राइट अ गुड रिपोर्ट। RA ये बोलना चाह रहा है, आई कैन राइट अ गुड रिपोर्ट अबाउट अ स्मॉल कैप कंपनी, ठीक है। एंड इफ आई रियली हैव कैलिबर, आई विल रन अ वेबसाइट, और उस वेबसाइट में मैं रिसर्च पब्लिश करूंगा। जो लोग सब्सक्राइब करेंगे, से 50,000 पर एनम, से 3,000 पर मंथ और 4,000 पर मंथ, वो लोग को मेरा रिसर्च रिपोर्ट मिलेगा। अंडरस्टूड? तो सब्सक्रिप्शन मॉडल से चालू कर दी। RA वाला वो वाला मॉडल हो गया। बट RA वाला क्लाइंट का स्टडी नहीं कर रहा है। किसका स्टडी नहीं कर रहा है? क्लाइंट का। मतलब क्या वो स्टॉक तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट है? सूटेबिलिटी नहीं चेक कर रहे। हो सकता है तुम एक 60-65 ईयर ओल्ड क्लाइंट है, यू हैव रिटायर्ड
यू डोंट हैव अ रिस्क एपेटाइट एंड देयर इज अ स्मॉल कैप स्टॉक, और आरए ने रिपोर्ट निकाला बाय, क्या रिपोर्ट निकाला? बाय की, बहुत बढ़िया, इसका टारगेट है 720, अभी दाम चल रहा है 260, बाई कर लेना चाहिए। एंड वो जो 65 ईयर ओल्ड पर्सन है वो बाई कर लिया और उसका पैसा डूब गया, बिकॉज जब तक वो स्टॉक रिकवर होगा तब तक तो हो सकता है वो टपक जाएगा। माने देयर इज नो टाइम ना फॉर दैट पर्सन टू एक्चुअली अर्न। आई एम सेइंग इट, मैंने वर्ड यूज किया कई बार जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है? सो यू अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब सर कितना गलत था कि वो आरए उस पर्सन के लिए स्टॉक रेकमेंड किया। तो भाई आरए किसी पर्सन के लिए रेकमेंड नहीं कर रहा, वो जनरली बोल रहा है। आरए का लायबिलिटी नहीं है कोई 85 ईयर ओल्ड बाई कर लिया है, 2 ईयर ओल्ड बाई कर लिया, वो आपको देखना है। आरए विल नॉट लुक एट सूटेबिलिटी, वो क्लाइंट का स्टडी नहीं कर रहा है। आईए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का पर्पस क्या है? सूटेबिलिटी, क्लाइंट के लिए सूटेबल है क्या, क्लाइंट का क्या प्रोफाइलिंग है, कितने उस फैमिली मेंबर्स है, कितना अर्न कर रहा है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वगैरह वगैरह, क्या उसका रिस्क एपेटाइट है, ये सब आईए एक लेवल ऊपर। पर आईए पैसा लेगा नहीं, क्या? आईए आपका पैसा नहीं लेगा, आईए आपको केवल एडवाइस करेगा, यहां लगा, विल नॉट टेक योर मनी, मनी इज विथ यू, ठीक है? और जो फंड मैनेजर है ही विल टेक योर मनी। तीनों में डिफरेंस समझ गए? आई कांट एक्सप्लेन टू यू, पीपल आर सो आगे, बीकॉम सब हो गया है, फाइनेंस में है, दे डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल स्टफ टू अंडरस्टैंड। तो अपने बोलना चाह रहे हैं कि ये जो गिफ्ट्स है ना, दिस इज नॉट फॉर आरए, दिस इज नॉट फॉर आईए, दिस इज नॉट फॉर कंसल्टेंट, दिस इज नॉट फॉर ब्रोकर्स, दिस इज नॉट फॉर इंटरमीडियरीज, दिस इज ओनली फॉर फंड मैनेजर्स। एंड वही फंड मैनेजर में एक पर्सन नहीं, फर्म्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स हु आर एक्चुअली मैनेजिंग एसेट्स, ठीक है? तो एक सॉफ्टवेयर बना है, सॉफ्टवेयर। तो गिब्स के अंदर जो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है ना, जिस तरह का कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है गिब्स के अंदर, एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेशन कर देते हैं। मैंने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, कैलकुलेशन वैसे हो जाएगा। द सॉफ्टवेयर कैन नॉट क्लेम गिब्स कंप्लायंस। इट इज गुड दैट द सॉफ्टवेयर सेज दैट हम लोग, मेरा सॉफ्टवेयर गिब्स के हिसाब से कैलकुलेट करता है, जिससे बहुत सारे फर्म्स उस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, दैट्स ओके, बट इट कैनॉट क्लेम गिब्स कंप्लायंस। कंसल्टेंट्स कैनॉट क्लेम गिब्स कंप्लायंस, ब्रोकर्स कैनॉट, वेंडर्स कैनॉट, ओके, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स कैनॉट, ठीक है? ओनली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स एंड एसेट ओनर्स हु आर एक्चुअली मैनेजिंग एसेट्स कैन क्लेम गिब्स कंप्लायंस। ओनली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स एंड एसेट ओनर्स, दे कैन क्लेम गिब्स कंप्लायंस। क्लियर? ठीक है? इससे एक मुफ्त का क्वेश्चन आ सकता है, हु कैन क्लेम गिब्स कंप्लायंस, मल्टीपल चॉइस रहेगा, और वो भी लर्न नहीं करना है आपको लैंग्वेज दिया रहेगा, विद द फील्ड इटसेल्फ यू विल बी एबल टू आंसर, ठीक है? कि हु कैन क्लेम गिब्स कंप्लायंस। बेनिफिट्स ऑफ गिब्स भी आपको समझ में आ गया। इन केस यू कैन थिंक अबाउट एंड जस्ट हिंट मी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गिब्स फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स? बोला क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश होगा, उन पे ऊपर लोग भरोसा करेंगे, उनके ऊपर लोग भरोसा करेंगे, ठीक है? फिर नहीं, माने फर्म्स को क्या फायदा होगा? तुम एक फर्म हो, तुम पैसा मैनेज कर रहे हो, तुम्हारे लिए गिब्स का क्या फायदा है? ग्लोबल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे, यू विल बी एबल टू रब शोल्डर्स, you will be able to rub shoulders with the likes of Fidelity, with the likes of BlackRock, होगा BlackRock बड़ा, ठीक है? तो like suppose we talk about, once again I come to my example, we talk about an Indian tuition center which is registered with the CFA Institute. We are a prep provider with the CFA Institute. Now there is a big global training provider like Quasar Kaplan. Now Kaplan is a multi-billion company, but we are standing on the same level playing field as Kaplan and SSCI, not being in any comparison to them at all, ठीक है? Because we complied with CFA Institute का prep provider guidelines, so we are able to rub shoulders with them. Understood? तो वैसे ही a small Indian firm which has caliber opened by you after 5 years, if you want to get a mandate for sovereign wealth fund, why can't you? By being GIPS compliant and obviously by knowing how to manage the funds. ठीक है? तो ये फायदा है, ग्लोबल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, रिलायबिलिटी होगा, कॉन्फिडेंस होगा, फेथ होगा आपके ऊपर, आप ज़्यादा बिजनेस अट्रैक्ट कर पाओगे, एंड आपका इंटरनल प्रोसेसेस भी इंप्रूव होगा। क्या इंप्रूव होगा? इंटरनल प्रोसेसेस। और क्लाइंट्स लोग को तो, इन्वेस्टर्स को तो भर भर के बेनिफिट है।
दे आर एबल टू कंपेयर, समझ पा रहे, दे आर एबल टू रिलाई, कॉन्फिडेंस इज देयर, ठीक है, तो वो लोग को बेटर हो पा रहा है, इकॉनमी को ही फायदा हो रहा है गिप्स से, ठीक है। गिप्स में मैं 3 तरह का एब्यूजिव प्रैक्टिसेस बोला था जो गिप्स ट्राइज टू रिमूव। व्हाट वर द 3 एब्यूजिव प्रैक्टिसेस? चेरी पिकिंग जनरल वर्ड था, अंदर के वर्ड्स क्या थे? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, टॉप परफॉर्मिंग अकाउंट्स को दिखाना, और सर्वाइवरशिप बायस, टर्मिनेटेड अकाउंट्स को नहीं दिखाना। टर्मिनेटेड अकाउंट्स को दिखाना जरूरी है, अगर आप नहीं दिखा रहे हो तो देयर इज अ बायस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? you have to show terminated accounts. If you are not showing, there is a bias. और तीसरा वेरिंग टाइम पीरियड्स, वेरिंग सिलेक्टेड टाइम पीरियड्स का डिस्क्लोजर दिखाना, ठीक है। अगर मैं 2-4 मिनट केवल और बोल दूं ना, अभी तक मैंने लिखाया कुछ नहीं है, विच आई विल डिक्टेट, डोंट वरी, तो इन दैट केस यू विल बी सो कॉन्फिडेंट। मैंने आई मेड अ मिस्टेक इन माई इक्विटी का सेकेंड क्लास, इक्विटी का जो सेकेंड क्लास था उसमें आई वाज सो सैड। बट क्लास लेने के बाद क्या होता है, देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फील। व्हाट आई डिड इन दैट क्लास इज दैट आई एक्सप्लेन रिसर्च रिपोर्ट का कंपोनेंट्स, बट उसके अंदर का पार्ट मैं कवर नहीं किया था, एंड बिफोर दैट वी वेंट इनटू द क्वेश्चंस। सो देयरफॉर द कंफर्ट लेवल दोज हु डिड इक्विटी का सेकंड क्लास वाज नॉट दैट हाई बिकॉज वी हैड नॉट डन द अंदर का पार्ट. Today I am wanting the experience to be really very good, 10 upon 10. Therefore let me take 5 more minutes to ensure that अपने अभी क्वेश्चंस करें ना नोट्स के पहले, तो क्वेश्चंस आपके परफेक्टली राइट हो और आपको लगे एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना. वाई गिप्स, ये जो WHY वाई गिप्स है ना, इसके ऊपर टेस्टेबिलिटी होता है और इसका एक हो गया टू प्रिवेंट एब्यूजिव प्रैक्टिसेस, टू प्रिवेंट एब्यूजिव प्रैक्टिसेस, वो आपके समझ में आ गए. उसके अलावा वाई गिप्स में इन्होंने कुछ लैंग्वेजेस यूज किया है कि गिप्स का ऑब्जेक्टिव क्या है. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस पर प्रीएम्बल नहीं होता, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है. वैसे ज्ञान दिया है कि वाई गिप्स का ज्ञान, रिटन एग्जाम होता तो बहुत ही हालत खराब होता, अपने को रटना पड़ता वो वाई गिप्स जाके. बट सिंस मल्टीपल चॉइस एग्जाम है तो इन दैट केस फीलिंग इनफ है, वो फीलिंग दे रहा हूँ. तो वाई गिप्स में ये लोग 5 ऑब्जेक्टिव दिए गिप्स का, 5 ऑब्जेक्टिव इन द प्रीएम्बल, 5 ऑब्जेक्टिव. 1 ऑब्जेक्टिव इज इन्वेस्टर को सेफगार्ड करना, इन्वेस्टर को उसको प्रोटेक्ट भी करना, उसको कॉन्फिडेंस भी देना, इन्वेस्टर रिलेटेड, ठीक है. दूसरा ऑब्जेक्टिव है डेटा रिलेटेड. क्या रिलेटेड? डेटा, माने काश जो कैलकुलेशन और डेटा प्रोवाइड हो वो एक्यूरेट हो. द डेटा गार्बेज इन गार्बेज आउट नहीं हो कि डेटा ही गड़बड़ दी है तो आउटपुट से क्या मतलब है. तो द डेटा शुड बी एक्यूरेट, द कैलकुलेशन शुड बी एक्यूरेट. डेटा का क्रेडिबिलिटी, डेटा का कंसिस्टेंसी, ठीक है. डेटा रिलेटेड. फर्स्ट था इन्वेस्टर रिलेटेड. अब मैं आपको लर्न करवा रहा हूँ राइट नाउ. इफ यू आस्क मी साहब क्या करवा रहे हैं, मैं आपको लर्न करवा रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है. तो एक था इन्वेस्टर रिलेटेड, दूसरा क्या है डेटा रिलेटेड, तीसरा है खुद माने ये मान लो सेल्फिश कि CFA इंस्टीट्यूट भी तो बड़ा बनना चाह रहे हैं ना, तो CFA इंस्टीट्यूट चाह रहा है गिप्स सब जन एक्सेप्ट कर ले, ठीक है. वैसे उस तरह मैंने बोला खुद, बट देखा जाए तो बढ़िया ही रहेगा. इफ ग्लोबली आज अपने यूरोप में जाते हैं तो ड्राइविंग लेफ्ट साइड ड्राइविंग है, इफ़ यू आर अवेयर. इंडिया में राइट साइड ड्राइविंग है, ठीक है. कहीं पे मिडिल ड्राइविंग होगा, नहीं है, वैसे मजाक कर रहा था. तो कहने का मतलब है काश एक ग्लोबल तरीका होता ना, इतना परेशानी होता है व्हेन यू गो टू यूरोप एंड यू आर ड्राइविंग, माने इट बिकम सो डिफिकल्ट. तो कहने का मतलब है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अगर एक्सेप्टेड हो जाए गिप्स पर, गिप्स को यूनिवर्सली एक्सेप्ट करवाना, यानी खुद का सेल्फिशनेस हो गया, मेकिंग गिप्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, ठीक है. पहला किसका था? इन्वेस्टर्स. दूसरा डेटा. तीसरा खुद का कि गिप्स को एक्सेप्ट कराना है दुनिया में. चौथा फेयर एंड ग्लोबल कॉम्पिटिशन, फेयर एंड ग्लोबल कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन प्रमोट करना बिटवीन फर्म्स, ठीक है. एंड पांचवा सेल्फ रेगुलेशन प्रमोट करना. क्या? सेल्फ रेगुलेशन. ये सेल्फ रेगुलेशन वर्ड कई बार आएगा. द पॉइंट इज दैट जो अपने हिंदी पिक्चरों में होता था एंड ऑल दैट, और जो अपने को पता है हिंदी पिक्चरों को तो फालतू बदनाम करते हैं इवन हर जगह, ये रेगुलेटर्स लोग कोई भी चीज़ पहले से प्रोएक्टिवली ले आते हैं कि होने के बाद लाते हैं, होने के बाद. ये बात तो फैक्ट सब जानते हैं. रेगुलेटर्स कम आउट विथ रेगुलेशंस ओनली आफ्टर अ कांड हैज हैपेंड, देन दे कम आउट विथ इट. So it's always one step back. CFA Institute said that we can't wait where regulators will come up. हो सकता है इंडिया का SEBI, US का SEC कल के दिन आएगा and they will come out with global standards. Regulators will come out with global standards. ऐसा होगा, हो सकता है 5 साल बाद, 7 साल बाद. तो CFA Institute ने क्या बोला? We can't wait for them.
वी हु आर ड्राइविंग द कार, इट्स लाइक सेइंग दैट ट्रैफिक का रूल, चलो ड्राइवर्स का एक एसोसिएशन है वो बना लिया ना, अगर कौन ग्रीन रेड कोई फॉलो नहीं कर रहा तो ड्राइवर्स लोग अपना एसोसिएशन बनाए और बोले यार अपने जो गाड़ी चलाएंगे ना सब जन इस तरह गाड़ी चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ड्राइवर्स ने बना लिया गवर्नमेंट के पहले, बिकॉज हु इज ड्राइविंग द इंडस्ट्री, द इन्वेस्टमेंट फर्म्स। तो दे आर सेइंग दैट लेट्स मेक अ सेट ऑफ रूल्स ना, हम लोग इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, तो दिस इज सेल्फ रेगुलेशन। व्हाट इज इट? सेल्फ रेगुलेशन। ये मैंने लर्न करवाया है। ओके, पांचों का पांचों बात करें। फर्स्ट वाला किससे रिलेटेड था? इन्वेस्टर्स, उसको प्रोटेक्ट करना और कॉन्फिडेंस देना है। दूसरा क्या था? डेटा, क्रेडिबल डेटा होना चाहिए, एक्यूरेटली कैलकुलेटेड। तीसरा क्या था? मैं भी भूल रहा हूँ, आई डोंट लाइक लर्निंग। आप लोग को याद हो गया तो खुद के फायदे के लिए, किसका? सीएफए इंस्टीट्यूट का फायदे के लिए, कि गिफ्ट्स को यूनिवर्सली एक्सेप्ट करवाना है। ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स एज द ओनली स्टैंडर्ड। ये तो सेल्फिश हो गया ना, सीएफए इंस्टीट्यूट अपना प्रचार चाह रहा है। चौथा, फेयर ग्लोबल कंपटीशन, फेयर ग्लोबल कंपटीशन। और पांचवा, सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है। एंड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ गिफ्ट्स इज फेयर रिप्रेजेंटेशन एंड फुल रिप्रेजेंटेशन। मतलब वो जो जिन्होंने स्टैंडर्ड नंबर कौन सा था, आई रिमेंबर फैक्ट 3 वॉट 3C या 3D था, जिसमें अपने फैक्ट वर्ड देखे थे कि द प्रेजेंटेशन शुड बी फेयर, एक्यूरेट, कंप्लीट, एंड आई एडेड अ वर्ड T, ट्रांसपेरेंट। ठीक है ना, दैट वे। तो आई थिंक अपने सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं, एक बार देखते हैं। ठीक है, एंड तुरंत यू विल फील गुड एंड देन वी विल जस्ट समराइज व्हाट वी डिस्कस्ड। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। फुल स्क्रीन दिखाना। ठीक है, मेरा फेस नीचे साइड में कर सकता है बट फुल स्क्रीन सामने आना चाहिए। फेस टू फेस स्टूडेंट्स, मुंह से आंसर मत देना एक बार प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अब्यूजिव प्रैक्टिस दैट गिफ्ट स्टैंडर्ड वेयर डिजाइन टू अवॉइड? तीनों में से एक अब्यूजिव प्रैक्टिस है। यानी जो गलत होता था और गिफ्ट उस गलती को सुधार रहा है। क्या गलत होता था? ठीक है, यस, व्हाट इज द आंसर बाय ऑल ऑफ यू? सी, वहां पे आंसर आ गया था लाइव में सारे स्टूडेंट्स का, यहाँ पे फेस टू फेस में भी आ गया। जल्दबाजी में गड़बड़ मत करना। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक एट द वर्ड टर्मिनेटेड पोर्टफोलियोज एंड यू रिमेंबर इट। सब बोले थे ना टर्मिनेटेड, अरे सर क्या बोले थे? दैट हैज टू बी सीन ना, यू कांट जंप लाइक दिस। Presenting performance results that include terminated portfolio, this is an abuse या this should be done? This should be done. Terminated portfolios आने चाहिए, वो स्टूडेंट्स का डेटा मेरे को रिपोर्ट करना चाहिए जो स्टूडेंट फेल होकर सीएफए छोड़ दिया। ठीक है ना? ओके। बी, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस रिजल्ट्स विद एन अप्रोप्रिएट बेंचमार्क। आई डिड नॉट स्पीक अबाउट इट बट ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड दैट गिफ्ट्स में ये डेफिनेटली है कि जो भी फंड मैनेजर है वो एक बेंचमार्क से कंपेयर करेगा परफॉर्मेंस। जैसे लार्ज कैप मैंने बोला तो आई एम कंपेयरिंग माय परफॉर्मेंस टू निफ्टी बिकॉज निफ्टी इज लार्ज कैप, तो आई हैव टू कंपेयर विद अ सूटेबल बेंचमार्क। ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड रिलेटिव परफॉर्मेंस। सपोज मैंने 25% रिटर्न दिया है और मैं चमका रहा हूँ 25%, बट उस समय सेंसेक्स और निफ्टी हैज गॉन अप बाय 60%, 60। तो व्हेन आई गिव 50% रिटर्न, सेंसेक्स और निफ्टी वेंट अप बाय 60%, तो इट इज नॉट अ ग्रेट परफॉर्मेंस ना। तुमने एक एग्जाम में 82 मार्क्स लाए और तुम उछल रहे, सब जगह दिखा रहे मम्मी पापा ये वो, सबका सब 100 लाए हैं, तो बोले बेंच मार्किंग होना चाहिए ना, दैट वे। और सी क्या है? प्रेजेंटिंग परफॉर्मेंस रिजल्ट्स फॉर सिलेक्ट टाइम पीरियड्स। ये अब्यूजिव प्रैक्टिस है, वेरिंग टाइम पीरियड। ठीक है ना? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फेस टू फेस वाले मुंह से मत बोलना, रिलेटेड टू व्हाई द गिफ्ट स्टैंडर्ड्स वेर क्रिएटेड इज लीस्ट लाइकली करेक्ट? Which of the following statement related to why GIPS standards were created is least likely correct? The GIPS standards were created to, दो ठो correct statement है और एक incorrect है, incorrect वाला आंसर होगा। The GIPS standards were created to, इसमें 2 sentences सही है, वो आंसर नहीं है। जो गलत statement है वो आंसर है, least likely correct। दिस इज अ लिटिल बिट वर्डी, ओके, वर्डी, वर्ड्स ज़्यादा है इसके अंदर, फिर भी यू हैव टू गिव योर टाइम एंड थिंक।
जो आप आंसर बोलोगे इसका मतलब वो सही नहीं है, समझ जाना, लीस्ट लाइकली है। तो कौन सा दो सही लग रहा है उसको अलग करो, तीसरा वाला, ठीक है, वो आंसर होगा। मैंने बीच में ये लैंग्वेज यूज़ किया था कि ILFS का कांड हुआ। ILFS, यू मस्ट हैव हर्ड ILFS, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज 2017-18 में, ठीक है। US में एनरॉन का कांड हुआ था। एनरॉन वाज अ वेरी वेरी बिग एनर्जी कंपनी एंड कोलैप्स हुआ था। सत्यम का कांड हुआ था। इन सारे कांड में द पॉइंट इज दैट ऑडिटर्स जो है उनको पकड़ा गया कि भाई तुमने तो ऑडिट किया था ना सत्यम का, क्या हुआ, तुम तो बोले थे ठीक है अकाउंट्स। तो ऑडिटर्स बोलते हैं हम कभी आपको 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल रहे कि हर एक चीज़ ठीक है, वी कांट गिव यू 100% सर्टेनिटी। हम लोग तो रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं कि ऑल द स्टैंडर्ड्स हैव बीन कंप्लाइड विथ। नो ऑडिटर विल गिव यू अ 100% गारंटी। तो गिब्स कोई फर्म फॉलो किया है तो इसका मतलब ये है क्या कि सर उसके फर्म के प्रेजेंटेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं है, कहीं पे भी चली जाइए आप, कुछ मिस्टेक नहीं है। नो, नोबडी कैन गिव दैट, ठीक है। तो गिब्स विल नॉट प्रोवाइड 100% सर्टेनिटी। यू हैव टू कैरी आउट योर ड्यू डिलिजेंस, यू हैव टू कैरी आउट योर ड्यू डिलिजेंस। तो ये जो क्या, प्रोवाइड क्लाइंट सर्टेनिटी इन व्हाट इज प्रेजेंटेड। नोबडी कैन प्रोवाइड यू सर्टेनिटी, नोबडी। ओके, हम लोग पढ़ाते हैं ना क्लास में, तो इन दैट केस कभी कभी कोई स्टूडेंट का ऐसे आता है कि सर आपने क्लास में ये लिखाया था पर कोर में ये लिखा हुआ है। ऑब्वियसली व्हेन आई एम टीचिंग इन क्लास, एम आई टीचिंग विद द हेल्प ऑफ अ बुक? क्या एक पीपीटी प्रेजेंटेशन चल रहा है? नहीं, मैं तो खुला पढ़ाता हूँ। तो खुला पढ़ाते हुए आई एम डिक्टेटिंग अ नंबर ऑफ स्टफ। इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल कि कहीं ना कहीं मेरे से चूक हो जाए, आई मिस आउट समथिंग, और आई मे एक्चुअली give out something which is technically not correct. It is possible in the larger scheme of things, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज है ना, प्रोवाइड क्लाइंट्स certainty in what is presented, no, nobody can provide you certainty, ठीक है ना। तो in that case this is a wrong statement. A and C are correct statements, although जब डिक्टेशन लिखाऊंगा ना तो मैं A and C जैसा लैंग्वेज को भी लिखा दूंगा so that it becomes more absorptive, क्या बोलते हैं, फ्रेंडली टू यू। A और C का जो लैंग्वेज है, There's nothing to explain about A and C, वही अपने डिस्कस किए 1 घंटे से, ठीक है। A and C के बारे में दिस सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में A and C वही लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा था, which I will try to cover in my notes. तो B is the incorrect statement. Hope you understood. Nobody can provide you certainty. But सर अगर वेरीफाइड हो गया तो certainty है क्या? तो भी नहीं है। वेरीफाइड हो गया तो भी certainty नहीं, समझ गए? तो बहुत हायर डिग्री ऑफ एश्योरेंस है। क्वेश्चन 3, the Gibbs standards were created to I think एकदम easy है। Which is the answer? A is the answer. Okay, B cannot be the answer. आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा because Gibbs standard do not provide certainty, plus that's about the past. हो सकता है वो वैसा परफॉर्म ही नहीं करे फ्यूचर में, ठीक है। Serve as mandatory performance standards for asset management firms in countries without investment performance regulation. Mandatory बोल रहे हैं, जबकि Gibbs is mandatory या voluntary? Voluntary, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। द गिब्स स्टैंडर्ड allow the use of a representative account to represent the firm's overall investment result. Gibbs standard require firms to present performance history that only includes accounts remaining at the firm. The Gibbs standard establishes a standardized approach to present historical investment results to prospective clients. Which is the answer? C. A और B तो abusive practice है। A is representative account bias, while B is your, क्या बोलते हैं, कौन सा, सर्वाइवरशिप बायस। केवल वही अकाउंट्स जो फर्म्स में रह गए हैं उनको दिखा रहे हैं, ठीक है। क्लियर कट, सी इज द आंसर। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गिब्स कंप्लायंस इज करेक्ट?
asset owners that manage assets can claim compliance with GIPS like EPFO, like CalPERS. ठीक है? Software that calculates performance in a manner consistent with GIPS can claim compliance with GIPS. Firms can comply with GIPS standard by limiting their compliance claim to the provisions they have chosen to follow. ये बोलना भूल गया मैं. There is no partial GIPS compliance. Either there is full GIPS compliance or there is no compliance. एक फर्म ये नहीं बोल सकता है हम लोग का ये वाला जो स्ट्रैटेजी है ना ये GIPS को कंप्लाई करता है, मेरा जो ये कैलकुलेशन है ये GIPS के अनुसार है, पार्शियल नहीं चलेगा. ठीक है? तो either you fully comply with GIPS or you do not comply. There is no partial compliance of GIPS. I forgot to communicate. ठीक है? आप एक पोर्शन का कंप्लायंस क्लेम नहीं कर सकते हो, पूरा कंप्लायंस क्लेम कर सकते हो, और यह मत करो. There is no partial compliance allowed. तो ऑप्शन सी बोल रहा है firms can comply with the GIPS standard by limiting their compliance claim to the provisions they have chosen to follow. They can't do this. They have to follow GIPS in entirety and then claim compliance. There is no partial compliance of GIPS. मोतीलाल ओसवाल का एक इक्विटी एक फिक्स्ड इनकम है, बोल रहे हैं हम लोग का इक्विटी फॉलोज गिप्स, फिक्स्ड इनकम डज नॉट. ये सब नहीं चलेगा. ओके, फुल का फुल होना पड़ेगा. ठीक है? Therefore the answer is what? A. Which of the following cannot claim compliance with the GIPS standard? Which of the following cannot claim compliance with the GIPS standard? Answer is what? B. Software vendors. कोई वेंडर जो मेरे को सॉफ्टवेयर सप्लाई करता है वो गिप्स कंप्लायंस नहीं कर सकता कि मेरा वाला सॉफ्टवेयर गिप्स कंप्लायंट है. ओनली दोज हु मैनेज फंड्स दे कैन क्लेम कंप्लायंस विद गिप्स. इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स एंड एसेट ओनर्स. ठीक है? तो प्राइवेट पेंशन फंड्स विल फॉल इनटू एसेट ओनर्स कैटेगरी. से ONGC का एक प्राइवेट पेंशन फंड है फॉर ONGC का एम्प्लॉइज, दैट इज रिपोर्टिंग टू ONGC का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इट इज रिपोर्टिंग टू ONGC का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इट इज नॉट competing for business, but it is managing assets. ONGC ka it can claim GIPS compliance. It falls under the category of asset owners. Are you understanding? It need not necessarily be a regulatory authority like EPFO and all that. It can be a this thing jahan private pension fund reporting to the board of the company. ठीक है? Which of the following can claim compliance with the GIPS standard? Consultants who advise investing firms, investment management firms that manage discretionary client assets. Consultants claim कर सकते हैं क्या compliance? क्या बोला था मैंने? नहीं कर सकते. Asset owners that do not compete for business like EPFO but report their performance to oversight bodies, क्या ये लोग claim कर सकते हैं क्या? Yes. Vendors that provide software, no. ठीक है? Consultants no, vendors no, asset owners yes. ठीक है? Which of the following entities can claim compliance with the GIPS standard? A pension fund that manages investment for its beneficiaries. Yes, it is not competing for business. Okay, but it is actually managing assets. B. An investment consulting firm that focuses on enabling clients to self-manage their investments. It is not actually managing assets. ये clients को advise कर रहा है कि तुम यहाँ invest कर, वहाँ invest कर. I told you nicely, they cannot claim compliance with GIPS. They are not covered. C. A vendor that offers software cannot. Number 9. Which of the following is not a commonly perceived benefit of GIPS? कौन सा benefit नहीं है? दो ठो benefit है वो आंसर नहीं है. जो benefit नहीं है वो आंसर होगा. Which of the following is not a commonly perceived benefits of GIPS? गिप्स के कारण बोल रहा है कंपेरेबिलिटी आसान हो जाएगा. गिप्स के कारण एडहेरेंस होगा टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. गिप्स के कारण इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस बाय इन्वेस्टर्स एंड बेनिफिशियरीज. आंसर है बी. नथिंग टू डू विथ रेगुलेशंस. नथिंग टू डू विथ रेगुलेशंस. गिप्स लोकल रेगुलेशंस को इंश्योर नहीं कर सकता है. इनफैक्ट गिप्स पे ये लिखा हुआ है, सुन लेना. ये पॉइंट बुक में है कि नहीं पता, बिकॉज आई मे बी मिंगलिंग L1 L3 समटाइम्स. If there is some provision in GIPS which is inconsistent with local standards, GIPS में और लोकल में अगर फाइट हुआ कि सेबी बोल रहा है 15 साल का रिपोर्ट दिखाना है, गिप्स बोल रहा है 12 साल का दिखाना है,
तो इन दैट केस सेबी का मानना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रिक्टर ऑफ द टू नहीं है। एथिक्स में दोज हु हैव डन एथिक्स दे नो स्ट्रिक्टर ऑफ द स्टैंडर्ड्स था, स्टैंडर्ड्स या लोकल। यहाँ पे ये नहीं है। इफ देयर इज अ conflict between GIPS and local standards regulatory, follow the local regulatory standards and mention that in the GIPS report कि yes हमने GIPS कंप्लाई किया है बट ये वाला प्रोविजन अलग है बिकॉज लोकल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो GIPS लोकल से कोई मतलब नहीं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं GIPS को। ठीक है, बिकॉज कई बार रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऐसा हो सकता है ना जो कि कंपटीशन को किल करता है, टू अपीज लॉबी है ना अपने। जैसे अगर सपोज कोई भी कंट्री में से ट्रम्प है, तो ट्रम्प अगर फलाना फलाना चीज़ का इंपोर्ट नहीं करेगा तो बहुत सारे यूएस कंपनीज लोग जो इनएफिशिएंट है दे विल बी एबल टू मेक गुड बिजनेस इन यूएस। इंडिया में अगर बहुत सारा सेक्टर्स ओपनड अप नहीं है तो बहुत सारे इंडियन बिजनेसेस आर एबल टू डू द बिजनेस। तो वैसे ही हो सकता है एक कंट्री लाइक इंडिया में से डेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स केवल इंडिया का ही मैनेज करेगा और इंडियंस बाहर से नहीं करा सकते, ऐसा ऐसा रेगुलेशन कर दे। क्यों? जिससे कि इंडियन मैनेजमेंट फर्म्स जो है उन लोगों को प्रमोशन मिले, वो लोग वोट बैंक बने एंड ऑल दैट। तो ये तो ग्लोबल के अगेंस्ट पे चला गया ना। तो बहुत बार रेगुलेशंस ऐसा होता है डोमेस्टिकली विच हर्ट्स ग्लोबल कंपटीशन। गिप्स कैन नॉट कंप्लाई विद दैट, उसका स्पिरिट स्टैंड्स डिफीटेड। ठीक है, द गिप्स स्टैंडर्ड्स वेयर मोस्ट लाइकली डेवलप्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ होम। किसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट के लिए हुआ? प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। फॉर होम प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, उनके लिए हुआ कि क्लाइंट्स इन्वेस्टर्स को बचाना। मिडिल ऑफिस ऑपरेशन से मेरे को इंटरनल प्रोसेसेस का याद आता है कि सर आपने बोला था ना इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म का इंटरनल प्रोसेसेस एंड मिडिल ऑफिस ऑपरेशन सुधर सकता है। यस, दैट्स अ बाई प्रोडक्ट कि वही फ़ायदा है, बट द मेन फ़ायदा है प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स कि जो नया नया बंदा है पहली बार पैसा लगाने वाला है, कहीं उसको कोई CHOMU चोमू नहीं बना दे, ओके, बाय डूइंग द अब्यूजिव प्रैक्टिसेस। 11. Which of the following is most accurate? GIPS compliance eliminates investors' need for in-depth due diligence. Is it? No. Investors have to still carry out their in-depth due diligence because there could be some mistakes still. Enables the GIPS compliant firm to participate in competitive bids against other GIPS compliant firms only. Yes? जो मैंने बोला you can participate in competition with Fidelity, पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन विद ब्लैक रॉक, वो जो मिडिल ईस्ट का फंड था जो RFP इनवाइट किया था, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जबकि आप छोटे से, मैंने हो सकता है आपको दो चार साल हुआ है इन बिकमिंग अ फंड इन इंडिया और पाकिस्तान एंड यू कैन कम्पीट विद फिडेलिटी। यस यू कैन। ठीक है, तो इनेबल्स गिव्स कंप्लायंट फर्म्स टू पार्टिसिपेट। दिस इज फेयर ग्लोबल कॉम्पिटिशन। और बोथ तो रॉन्ग है बिकॉज यही रॉन्ग है। C cannot be the answer. C क्या A and B का combination. Question 12. Which of the following statement is most accurate? Compliance with the GIPS standard by firms eliminates the need for in-depth due diligence. Wrong है. Compliance with GIPS standard enables firms to participate in competitive bids against other. Same आ गया क्या? Repeat. Same ही आ गया. Is mandatory for firms. Wrong है. तो A wrong है, C wrong है. Which is the answer? B. तो यू कुड हैव सीन दैट इस बड़े एक सैंपल से आपको पता चल गया होगा कि गिप्स का क्वेश्चन ऐसा होने वाला है जो एग्जाम में रॉन्ग नहीं हो सकता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट आई सेड एट द बिगिनिंग। एंड होता क्या है, स्टूडेंट्स लोग पहले मॉरल साइंस का चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। एथिक्स में एक मॉरल का चैप्टर है वाई एथिक्स, जो मैंने पढ़ाया ही नहीं है अभी तक, बिकॉज बाकी करने के बाद वो मॉरल साइंस का चैप्टर करना ही नहीं है आपको। एंड पीपल विल स्टार्टेड विद दैट, अरे मॉरल साइंस के बाद आगे जाते आते गिफ्ट पे थक गए, छोड़ना गिफ्ट छोड़ के चल जाते। दिस इज द स्टेटस। तो जो राइट हो सकता था वो आप राइट करोगे नहीं, और बाकी का राइट होने में डिफिकल्टी है, आपका बिल एवरेज परफॉर्मेंस आएगा। आस्ते बच्चों आभार हॉबी ओके बेंगली में, मतलब वी विल सिट अगेन फॉर द एग्जाम। दिस इज व्हाट हैपेंस। ओके लेट्स टेक ऑन नोट्स प्लीज। वरुण जैन इज सेइंग सर मेरा करेक्ट कम हुआ अभी, तो क्या करना होगा? किसी का अपने क्वेश्चंस ट्राई कर रहे थे तो उसका नंबर ऑफ करेक्ट कम हुआ, 2-3 रॉन्ग हो गया, तो पूछ रहा है क्या करना होगा? तन मन धन लगा के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू स्टडी मोर। मेरे नोट्स से को रीडिंग शेयर्ड है उससे पढ़ना पड़ेगा, GPT को यूज़ करो। ठीक है, अप्लाई योर ब्रेन, इंटरैक्ट।
चलो, तो गिब्स का नोट्स बना रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, गिब्स आर practitioner driven set of ethical principles। माने जो जो वर्ड मल्टीपल चॉइस पे आता है ना, वो कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। प्रैक्टिशनर ड्रिवन सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स to establish standardized, ये वर्ड बहुत ज़्यादा था, standardized industry wide, ये भी वर्ड था, industry wide approach for investment management firms to follow in measuring and reporting historical investment performance to existing investors and prospective clients। To existing investors and prospective clients। इनकेस किसी का मिस हुआ है तो द पर्पस फॉर राइटिंग सो मच वॉज टू इंश्योर जो लैंग्वेज आ रहा था ना, जहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा था, वो पिकअप हो जाए। प्रैक्टिशनर ड्रिवन सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स टू एस्टैब्लिश व्हाट अ स्टैंडर्डाइज्ड इंडस्ट्री वाइड अप्रोच फॉर होम फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स टू फॉलो इन डूइंग व्हाट, इन मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग हिस्टोरिकल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस टू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। ठीक है, तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्रायर टू गिब्स ब्रैकेट 1999, गिब्स 1999 में स्टार्ट हुआ था। प्रायर टू गिब्स का क्या एग्जाम में पूछ सकता है कि एकदम भी नहीं, धरती आकाश फट जाएगा, ऐसा फालतू क्वेश्चन पूछा तो गिब्स का फुल फॉर्म पूछ सकता है क्या? नहीं। They cannot ask stupid things. Prior to Gibbs 1999, there were 3 abusive practices going on in the investment management industry। investment management industry, first bullet, representative account, dash, representative account के सामने लिखना है showing the performance of only top performing account, showing the performance of only top performing accounts,
showing the performance of only top performing accounts, showing the performance of only top performing accounts, performance of only top performing accounts. Second bullet, survivorship bias, survivorship bias dash, showing the performance of only surviving accounts, showing the performance of only surviving accounts, showing the performance of only surviving accounts, of only surviving accounts. That is, वहीं पे that is not showing terminated accounts. That is not showing terminated accounts. Not showing terminated accounts. Third bullet, varying time period bias, varying time period bias, dash, showing performance only for selected time period, showing performance for only selected time period, showing performance only for selected time period, for only selected time period. Parachange, besides these, parachange, besides these, comma, there was no uniformity. Besides these, comma, there was no uniformity in the quality of input data. There was no uniformity in the quality of input data. क्वालिटी ऑफ इनपुट डेटा का एक एग्जांपल क्या हो गया कि अगर हम लोग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, आज का मैं परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ, तो आज का मैं क्लोजिंग प्राइस लूँगा या फिर जहाँ बाजार बंद हुए, क्लोजिंग प्राइस का मतलब हुआ द लास्ट ट्रेडेड प्राइस, या आधे घंटे का एवरेज लूँगा, या फिर मेरा जो बाई किया हुआ है उसका सेलिंग प्राइस लूँगा और जो सेल किया हुआ उसका बाइंग प्राइस लूँगा. ठीक है, जो 2 घंटे पहले ट्रेड हुआ था, लास्ट पे ट्रेड ही नहीं हुआ, उसका कौन सा दाम लूँगा. बहुत झमेला होते हैं. ओके, कि व्हाट, हाउ वुड यू टेक विच प्राइसेस आर फॉर योर होल्डिंग्स, बिकॉज द ट्रेड नेवर टुक प्लेस एट द एंड. ओके, तो क्वालिटी ऑफ इनपुट डेटा, कॉमा, कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी, कॉमा, कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी, कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी, etc. And it became almost impossible for global investors to compare investment performance reported by different firms, to compare investment performance reported by different firms, to compare investment performance reported by different firms. Point number 3. Hence the CFA Institute, CFAI, hence the CFAI launched GIPS to act as a universal standard based on the principles of
based on the principles of fair representation and full disclosure. Based on the principles of fair representation and full disclosure. Fair representation and full disclosure. Full stop. Point number 4. Objectives of GIPS. Point number 4. Objectives of GIPS. 5 ऑब्जेक्टिव याद करवाए थे. पहला किससे रिलेटेड था? इन्वेस्टर्स. देखो फर्स्ट बुलेट, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टर्स. प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टर्स. प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टर्स. सेकेंड क्या था? डेटा. इंश्योर क्रेडिबल एंड कंसिस्टेंट डेटा. क्रेडिबल एंड कंसिस्टेंट डेटा. डेटा को अंडरलाइन, फर्स्ट वाले में इन्वेस्टर्स को अंडरलाइन, जैसे क्लास का टोन याद आए. थर्ड बुलेट, थर्ड क्या था? खुद के लिए अचीव वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस. अचीव वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस फॉर गिप्स. काश गिप्स सब जन एक्सेप्ट कर ले तो CFA इंस्टीट्यूट का जोड़ का नाम हो जाए. अचीव वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस फॉर गिप्स. फोर्थ बुलेट, फेयर ग्लोबल कंपटीशन. फेयर ग्लोबल कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट फेयर ग्लोबल कंपटीशन. फिफ्थ बुलेट, टू प्रमोट सेल्फ रेगुलेशन. पता नहीं गवर्नमेंट्स कब करेगा, ठीक है. टू प्रमोट सेल्फ रेगुलेशन. टू प्रमोट सेल्फ रेगुलेशन इन द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री. टू प्रमोट सेल्फ रेगुलेशन इन द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री. सेल्फ रेगुलेशन इन द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री. इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री. Para change. Point number 5. Who can claim compliance? Point number 5. Who can claim compliance? Who can claim compliance? लिख दो इसके अंदर. फर्स्ट बुलेट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स who are competing for business. Investment management firms who are competing for business. ठीक है. ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, HDFC, AMC, मोतीलाल ओसवाल, मार्सिलियस, all the investment management firms who are competing for business. Second bullet, asset owners bracket, pension funds whether public or private. Pension funds whether public or private. Pension funds whether public or private, comma SWF, sovereign wealth funds, SWF, bracket close. ब्रैकेट क्लोज के बाद such as EPFO in India, comma CalPERS, CalPERS, कोई कैलिफोर्निया कुछ है, CalPERS, CalPERS in US, etc., who actually manage assets
who actually manage assets, who actually manage assets and report to a body, and report to a body, and report to a body. Para change. Note, who cannot claim compliance. Note, who cannot claim compliance. गिब्स किनके लिए नहीं है? Who cannot claim compliance. First bullet. Software or software vendors. Software or software vendors. Second bullet. Investment advisors or consultants. Investment advisors or consultants. Third bullet. Research analysts. Research analysts and brokers. Para change. Some more points उसी में. Some more points. Some more points. Heading देखे some more points. उसके अंदर bullet, first bullet. There cannot be partial compliance of GIPS. There cannot be partial compliance of GIPS. Dot dot dot. Either full compliance or no compliance. Either full compliance or no compliance. Next bullet. GIPS are voluntary, not mandatory. GIPS are voluntary, comma, not mandatory. GIPS are voluntary, comma, not mandatory. Third bullet. It is firm-wide compliance, firm-wide compliance, FIRM, firm-wide compliance. Dot dot dot. Broadest definition of firm. Broadest definition of firm. Broadest definition of firm. Bracket, to be covered in. Broadest definition of firm, bracket, to be covered in LOSD. To be covered in LOSD. firm का जो broadest definition, ये मैंने नहीं पढ़ाया. To be covered in LOSD. Okay, D for Delhi. LOSD. Okay. Para change. Next point. Benefits of GIPS. Next point है. Point number 5 है क्या? 6. Benefits of GIPS. Benefits of GIPS. उससे 2 arrow निकाल दो. Left और right. लेफ्ट साइड में इन्वेस्टर्स और राइट साइड में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स. लेफ्ट साइड में इन्वेस्टर्स, राइट साइड में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स. इन्वेस्टर्स के अंदर फर्स्ट बुलेट, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, provides protection and gives confidence. Provides protection and gives confidence. जो ऊपर से related point था. Provides them protection and gives confidence. Provides protection and gives them confidence. Investors में second bullet. Makes comparability easier. Makes comparability easier.
makes comparability easier. राइट साइड में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स में enables them to compete globally, enables them to compete globally, enables them to compete globally, enables them to compete globally. Next bullet. Promotes credibility and trust, promotes credibility and trust from investors, promotes credibility and trust and brand, okay, from investors. एक तरह से brand बनता है कि देखो ये firm GIPS compliant है. Credibility and trust and brand from investors. Last bullet. Improves their internal processes. Firms में बोल रहा हूँ. Improves their investment processes, internal processes. Improves their internal processes. Improves their internal processes. Student is saying that sir आप एक point भूल गए, verifiers वाला नहीं भूले. GIPS is applicable for only two. Number one, investment management firms, and number two, what? Asset owners. गिप्स का 3 चैप्टर्स है. जो थर्ड चैप्टर है दैट इज वेरिफिकेशन का, ठीक है. बट इट इज़ नॉट दैट वेरीफायर्स ऐसे कोई फर्म्स है जो मैनेज करते हैं एसेट्स, ठीक है. तो वो 3 चैप्टर्स है गिप्स का, ये लिखाने का कोई सेंस नहीं है. जस्ट 1 सेकेंड. ओके, हेलो हेलो, ठीक है. यहाँ पे जनरल साउंड आ रहा होगा, ठीक है. सो ये अपना LOS A कंप्लीट हुआ. कैन यू जस्ट मार्क LOS A where we started? LOS A, there are 5 LOS. This was learning outcome statement A where we covered what? Why GIPS, for whom GIPS, benefits of GIPS. 3 पार्ट कवर किए. Why GIPS, for whom GIPS and benefits of GIPS, ठीक है. और प्लस बैकग्राउंड सेटअप कर लिए जिससे कि बाकी का LOS बहुत इजीली हो सकता है, ठीक है. ओके, सो आई थिंक विल एंड द क्लास ओवर हियर. Some people from my team, okay, they want to request some of you all to just take your feedback regarding the classes. If some of you have time, they can just stop for 5 minutes and provide your feedback. ठीक है. Of course, it's voluntary, not mandatory. ठीक है. And we are meeting tomorrow for equity का 3rd class. Okay. There is no distinction between the Monday, Wednesday, Friday batch and Tuesday, Thursday batch. जिसको जिस स्पीड से करना है वो वैसे आ सकता है. जिसको लाइव करना है लाइव करे, जिसको लाइव नहीं कर पाता है वो रिकॉर्डेड करे, ठीक है. डिसाइड अपॉन योर टर्म, मूव एट दैट पेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सी यू टुमारो.